کیا؟ یہ کب کی بات ہے امی؟ ہاں آج دوپہر کی. آج دوپہر؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہوا ہے بیٹا میرے سامنے. وہ گری ہے، اس کی ماں اسے لے کے ہسپتال بھاگی ہے، دونوں اتنا رو رہے تھے. اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، لائیں سے مجھے دے دیں. کیا بڑا جاؤ. ہاں بھائی دے دو، اب تھوڑی دیر اپنے بچے کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر لیں. ہاں ہاں. ہیلو ایمان، سب خیریت ہوئے؟ اتنی رات کو فون کیا ہے؟ آج ہم نے مال میں مہانور اور اس کی مما کو دیکھا تھا نا. مطلب وہ دونوں وہیں تھی نا. دیکھا تھا. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے کوئی غلط فہمی نہ ہو گئی ہو. غلط فہمی کیوں ہوگی؟ نہیں بس لیکن تم اس وقت مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایسے ہی. ایمان، اب اتنی رات کو کال کر ہی دی ہے تو وجہ بھی بتاؤ. راہم، تو کیونکہ آج دوپہر میں مانو نے امی سے کہا تھا کہ وہ ہاسپٹل جا رہی ہے کیونکہ اس کا مس کیریج ہو گیا ہے. لیکن ہم دونوں نے تو ان دونوں کو وہاں مال میں دیکھا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں مل کر شابیر کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ حقیقت تمہیں شابیر کو بتا دینی چاہیے. وہ کب تک بے وقوف بنتا رہے گا اس طرح؟ ایمان میری بات سنو، تم غلط کر رہی ہو. مجھے شابیر کو کچھ بھی نہیں بتانا. تمہیں شابیر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے. یہ نہ ہو اور کہ میری وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو جائے. جس انسان نے تمہاری زندگی میں زہر گھولا ہے نا، اس کی حقیقت بتانے میں کیا شرم؟ ویسے بھی ہیلو، ہو سکتا ہے کہ ایمان، اگر یہ بات تم شابیر کو بتا دو تو تم اسے کسی بڑی مصیبت سے بچا دو. شاوی، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے. بولو. میں نے آج دوپہر میں تمہاری بیوی اور تمہاری ساس کو شاپنگ مال میں دیکھا تھا. تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. غلط فہمی مجھے نہیں، تمہیں ہو رہی ہے شاویر. میں جھوٹ بولوں گی کیوں؟ میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں. تم واقعی سچ بول. میں اپنے بیٹے زاویار کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میں نے تم سے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے. شاہویر کی اس حالت کو دیکھ کر آریانہ دل ہی دل میں خوف محسوس کرتی ہے. وہ محرک سے کہتی ہے کہ شاہویر کا گھر تو جھوٹ نے برباد کر دیا. میں دوسری شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اگر رشتہ جھوٹ پر کھڑا ہو تو انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ خود کو سمجھاتی ہے کہ اگر اس نے بھی جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھایا تو اس کا انجام بھی شاہویر سے مختلف نہیں ہوگا. دوسری طرف شاہویر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ایمان کو منانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایمان سے کہتا ہے کہ وہ صرف اس کا ہے، صرف اسی سے محبت کرتا ہے. مگر ایمان کا دل اب زخمی ہو چکا ہے. وہ شاہویر کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں. شاہویر ہر لفظ سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایمان کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے اور اس کے لیے اب شاہویر کی وضاحتوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی. شاہویر کی آواز میں غصہ
दुख और बेबसी सब कुछ वाज़ेह नजर आ रहा था। वो बार बार महनूर के सामने वही सवाल दोहराता रहा कि उसने हामिला होने का झूठ क्यों बोला। आखिर उसे किस चीज की कमी थी कि उसने शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को खेल समझ लिया। महनूर का चेहरा जर्द पड़ चुका था, हाथ कपकपा रहे थे, मगर उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। न वो अपनी गलती तस्लीम कर पा रही थी और न ही उस झूठ को छुपाने का कोई जवाब ढूंढ पा रही थी। शाहवीर की आंखों में वो एतबार जो कभी महनूर पर था आज मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। उस लम्हे वो उसे देख कर भी ऐसा महसूस कर रहा था जैसे सामने कोई गैर खड़ा हो। उसी दौरान घर का माहौल मजीद संगीन होता चला गया। आर्याना दूर खड़ी ये सब देख रही थी और उसके दिल में अजीब सी घबराहट भर गई थी। उसने सोचा था कि शायद शाहवीर और ईमान के दरमियान कुछ गलत फहमियां होंगी, मगर यहाँ तो मामला ही पूरी तरह झूठ और धोखे से भरा हुआ था। वो महरक से धीमी आवाज में कहती है, अगर ये दूसरी शादी का इंजाम है तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। रिश्ता अगर शक और झूठ से शुरू हो तो आखिर में बिखर ही जाता है। आर्याना की आंखों में खौफ भी था और एहसास भी कि रिश्तों की बुनियाद सिर्फ सच्चाई से आरास्ता होती है। इधर ईमान अपने कमरे में बैठी रो रही थी। वो जानती थी कि शाहवीर उससे मोहब्बत करता है, मगर महनूर के मामले ने उसका दिल खौफ से भर दिया था। उसे लगा जैसे शाहवीर भी कहीं न कहीं इस झूठ का हिस्सा बन गया हो। शाहवीर दरवाजे पर आकर बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में नरमी, इल्तिजा और पछतावा सब मौजूद था। वो कहता है कि ईमान, मैंने कभी तुम्हारे साथ बेवफाई का तस्वुर तक नहीं किया। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। लेकिन ईमान का दिल अब टूट चुका था। वो कहती है, प्यार जहां शक की पहली दरार पड़ जाए वहां फिर यकीन दोबारा कायम नहीं होता। शाहवीर, उसके ये अल्फाज सुनकर शाहवीर की रूह तक लरज जाती है। घर में एक खामोश सी वीरानी फैल जाती है। एक तरफ महनूर अपनी गलतियों के बोझ तले दबी जा रही थी, दूसरी तरफ शाहवीर टूटे हुए एतमाद को जोड़ने की कोशिश करता हुआ बेबस था। और लैमन, वो अपनी इज्जत नफ्स, अपने दर्द और अपने खौफ के दरमियान उलझी हुई थी। रिश्तों का ये पेचीदा जाल सबके दिलों को जख्मी कर चुका था और आने वाले वक्त में ये दुख और भी गहरे होने वाले थे। ईमान के कमरे में फैली खामोशी मजीद गहरी होती जा रही थी। शाहवीर दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में वही दर्द और बेआ बसी थी जो ईमान के दिल को और जख्मी कर रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, ईमान, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बस एक बार बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ महनूर अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसके पास कोई बहाना, कोई वजाहत, कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जानती थी कि उसने सिर्फ एक झूठ नहीं बोला, उसने एक घर की बुनियादें हिला दी थीं। उसे लग रहा था जैसे दीवारें उस पर तंग पड़ रही हों। उसने बार बार खुद को समझाने की कोशिश की, मगर हकीकत से भागना मुमकिन न था। आज वो पहली बार अपनी गलती के वजन तले वाकई टूट रही थी। आर्याना और महरक लाउंज में खामोश खड़ी थीं। आर्याना ने डरी हुई आवाज में कहा, महरक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ सकते हैं। शाहवीर की आंखों में वो बेबसी देखकर मेरा दिल कांप गया। महरक ने आ भरी, रिश्ते झूठ से नहीं चलते आर्याना, और दूसरी शादी का फैसला तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुमने ठीक सोचा कि ऐसे वक्त में जज्बात से नहीं, अक्ल से फैसले करने चाहें। इसी लम्हे शाहवीर लाउंज में आया। उसकी आंखें सरख थीं, जैसे कई घंटे से सोया न हो। उसने महरक और आर्याना की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ईमान मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं टूट जाऊंगा, मगर उसके दिल में जो शक बैठ गया है वो कैसे खत्म करूं। उसकी आवाज लर्ज रही थी। आर्याना ने नजरें झुका लें। वो खुद भी इस दर्द को महसूस कर रही थी। घर का माहौल बिखर चुका था। झूठ, शक, खौफ और खामोशी सब अपने अपने हिस्से का जख्म छोड़ रहे थे। आने वाले लम्हे सबके लिए मजीद इम्तहानात लेकर खड़े थे, मगर अभी सब सिर्फ इस दर्द में डूबे हुए थे जो एक झूठ ने जन्म दिया था। शाहवीर ने आखिरी बार ईमान के बंद दरवाजे को देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि शायद किसी लम्हे सब कुछ ठीक होने की कोई उम्मीद मिल जाए। शाहवीर के कदमों के साथ दोबारा ईमान के कमरे के दरवाजे तक आया। उसने हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे उसे डर हो कि कहीं जरा सी आवाज भी ईमान के दर्द को बढ़ा न दे। उसकी आवाज मध्यम थी मगर दिल से निकली हुई। ईमान, बस एक बार, एक लम्हे के लिए सुन लो मुझे। मैं वो नहीं हूं जैसा हालात ने तुम्हारे
सामने पेश कर दिया है, मगर अंदर अब भी वही खामोशी गूंज रही थी। ईमान अपनी आंसुओं से भीगती सांसों को दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर टूटे हुए आत्माद ने उसे बोलने नहीं दिया। शाविर ने दरवाजे से सर टेक कर आंखें बंद कर लें। उसे वो दिन याद आ रहा था जब ईमान ने उस पर अंधा इत्मीनान किया था, जब उसके हर लफ्ज में ईमान की मुस्कुराहट छिपी होती थी। आज वही लड़की उसे सुनने तक को तैयार नहीं थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई उस काबिल था कि वो मुझ पर शक करे, या हालात ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां समझाने के लिए अल्फाज भी नाकाफी हो गए हैं। दूसरी तरफ ईमान बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी अंगुलियां कांप रही थीं। उसने कई बार चाहा कि उठकर दरवाज़ा खोले, शाहवेर की आंखों में देख कर खुद से पूछे कि हकीकत क्या है, मगर उसके दिल में एक खौफ बैठ चुका था। उसे लग रहा था जैसे अगर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो वो फिर एक बार टूट जाएगी। वो आस्तगी से बड़बड़ाए, शाहवेर, मैं थक गई हूँ। शक और सच्चाई के बीच पलटते पलटते थक गई हूँ। इसी दौरान महनूर के कमरे में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिल डूब रहा था कि उसके एक झूठ ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। उसके जहन में वो लम्हा बार बार आ रहा था जब शाहवेर ने उसे माल में देखा था, मुस्कुराते हुए, बेफिक्र, जैसे उसने हामिला होने का ड्रामा रचाया ही ना हो। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ अपनी कवियर रात के आखिरी पहर तक ईमान के दरवाजे के बाहर बैठा रहा। उसने न कुछ खाया न पानी पिया, बस कभी कभी आहस्तगी से दरवाजे पर हाथ रख कर ये महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि शायद ईमान अंदर मौजूद तकलीफ से बाहर निकलने की हिम्मत कर ले। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो टूट गया तो ऐमन का दिल मजीद सख्त हो जाएगा। वो धीमी आवाज़ में कहता, ईमान, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने कभी भी किसी और के लिए तुम्हें तकलीफ देने का सोचा तक नहीं। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी उसे गहरी चोट दे रही थी। इधर ईमान भी जाग रही थी। उसने अपने चेहरे पर आंसू पहुंचने की बेशुमार कोशिश की, मगर आंसू जैसे रखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने अपने दिल से सवाल किया, क्या शाहवीर वाकई कसूरवार है, या हालात ने मुझे इतना दर्द दिया है कि मैं उसे समझने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही। वो जानती थी कि शाहवीर ने कभी उसके साथ बेवफाई नहीं की, मगर महनौर का झूठ ऐसा जहर बनकर आया था जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया था। वो खुद भी चाहती थी कि दरवाज़ा खोलकर शाहवीर से बात करे, मगर वो खौफ, वही डरा हुआ एहसास उसे एक कदम भी बढ़ाने नहीं दे रहा था। महनूर की हालत भी हर गुजरते लम्हे के साथ बदतर होती जा रही थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई अपने चेहरे पर फैली बेरौनकी को देखकर रो पड़ी। उसे अपनी हरकतों पर शदीद पछतावा हो रहा था। वो पहली बार हकीकत में समझ रही थी कि इंसान सिर्फ अपनी खुशी के लिए झूठ नहीं बोलता, हर झूठ के पीछे किसी न किसी का दिल, किसी न किसी का घर कुर्बान होता है। वो आहस्तगी से खुद से कहती, काश मैंने वो सब न किया होता, काश मैं अपनी गलतियों से पहले ही डर गई होती। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी थी। आर्याना अपनी नींद से जागी तो उसने लान में बैठे शाहवीर को थक्का हारा सहमे हुए अंदाज में देखा। वो महरक के पास गई और धीमी आवाज में बोली, देखो महरक, शाहवीर की हालत देखकर दिल बैठता है। अगर ये सब ईमान ने देखा तो शायद उसका दिल कुछ नरम हो जाए। महरक ने गहरी सांस ली। मैं मन टूट चुकी है आर्याना। टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए वक्त लगता है, लेकिन शाहवीर में सच्चाई है और ये सच्चाई एक दिन अपना रास्ता जरूर बना लेगी। उसी लम्हे ईमान ने दरवाजे की दर्ज से बाहर झांका। उसने देखा कि शाहवीर वहीं बैठा है, जैसे पूरी रात उसी जगह गुजार दी हो। उसके अंदर कुछ नरम सा टूट कर जागा। उसने दरवाज़ा आहिस्ता सा खोला, 2 उंगलियों जितना, जैसे एक जख्मी दिल पहली बार रोशनी में कदम रखने की कोशिश कर रहा हो। शाहवीर ने फौरन सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। ईमान ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र उसे देखा, मगर उस एक नज़र में वो सब कुछ था जो ज़बान अदा नहीं कर सकती थी। दोनों के दरमियान फासला अब भी मौजूद था, मगर शायद पहली बार इस फासले में पल बनने की कोशिश शुरू हो गई थी। ईमान ने दरवाजे को थोड़ा सा खोला, मगर वो अब भी पूरा बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में नींद की कमी, रोने की लाली और अंदरूनी तोड़-फोड़ सब वादह नजर आ रही थी। उसने कपकपाती हुई नजरों से शाहवीर को देखा। शाहवीर ने उसे देखते ही फौरन खड़े होकर सीधा होने की कोशिश की।
गोया एक लम्हे में सारी थकन, दर्द और बेबसी पीछे छोड़ देना चाहता हो। उसने हल्की सी आवाज में कहा, ईमान, तुम ठीक हो? ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें शाहवीर के चेहरे पर थीं, जिस पर सारी रात न सोने के आसार। ईमान ने दरवाजे को थोड़ा सा खोला, मगर वो अब भी पूरा बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में नींद की कमी, रोने की लाली और अंदरूनी तोड़-फोड़ सब वाज़ह नजर आ रही थी। उसने कपकपाती हुई नजरों से शाहवीर को देखा। शाहवीर ने उसे देखते ही फौरन खड़े होकर सीधा होने की कोशिश की, गोया एक लम्हे में सारी थकन, दर्द और बेबसी पीछे छोड़ देना चाहता हो। उसने हल्की सी आवाज में कहा, ईमान, तुम ठीक हो? ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें शाहवीर के चेहरे पर थीं, जिस पर सारी रात न सोने के आसार, फैली हुई परेशानी और बेहद दर्द लिखा हुआ था। वो उसके हाथों पर नजर डाली जो सर्द हो चुके थे, जैसे वो पूरी रात एक ही जगह बैठा रहा हो। शाहवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर इस कदम में इतनी एहतियात थी जैसे वो डर रहा हो कि कहीं ईमान मजीद पीछे न हट जाए। उसने आहिस्तगी से कहा, मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम मेरे सामने हो मगर तुम तक पहुंच नहीं पा रहा। यह बर्दाश्त से बाहर है। ईमान की आंखों में नमी तैरने लगी। वो जानती थी कि शाहवीर झूठ नहीं बोल रहा। उसके हर लफ्ज में सदाकत थी, मगर उसके दिल में बीसने वाला खौफ उसे बोलने नहीं दे रहा था। वो चाहकर भी अपने जज्बात को अल्फाज में नहीं ढाल पा रही थी। उसने वो मुश्किल कहा, शाहवीर, मैं टूट गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। क्या डर है, क्या हकीकत है, और क्या रिश्ता बच सकता है या नहीं? ये सुनकर शाहवीर के दिल पर जैसे खंजर चल गया। उसने अपने हाथ सीने पर रखकर कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है ईमान। तुमने जो सोचा, जो महसूस किया, वो हालात ने मजबूर किया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी भी अपने दिल, अपनी सोच या अपने अमल में तुम्हारे सवा किसी को जगह नहीं दी। महनौर का झॉट, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मगर मैं खुद को भी सजा देता रहा कि शायद मैं तुम्हें महफूज नहीं रख पाया। नीचे आर्याना और मेहर का हस्तगी से ऊपर आते हुए रख गए। उन्होंने देखा कि ईमान ने पहली बार रात भर की खामोशी के बाद दरवाज़ा खोला है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर खामोशी अख्तियार की, जैसे वो जानती हों कि इस लम्हे मुदाखलत दोनों के दरमियान बढ़ती हुई नरमी को तोड़ देगी। आर्याना ने धीमी आवाज में कहा, ये लम्हा इन दोनों के दरमियान रहने दो। शायद ये वो शुरुआत है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। ईमान ने आहिस्ता से दरवाज़ा थोड़ा और खोला, मगर अब भी उसके कदम बाहर नहीं आए। उसने शाहवीर को देखा और कहा, मुझे वक्त चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं देख रही। शायद मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, मगर अभी नहीं। मैं अपने दिल के शोर को समझने की कोशिश कर रही हूँ। शाहवीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें भीगने के बावजूद मुतमईन हो गईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ईमान का दिल पूरी तरह बंद नहीं हुआ। ये बस जख्मी है और जख्मों को मरहम देने के लिए वक्त ज़रूरी है। वो आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें वो वक्त दूंगा ईमान, चाहे जितना भी हो। बस मुझे उम्मीद रखने दो कि तुम एक दिन मेरे दिल की सच्चाई तक पहुंच जाओगी। ईमान ने पहली बार सिर झुकाकर नर्म लहजे में कहा, मैं कोशिश करूंगी। ये अल्फाज कम थे, मगर दोनों के लिए एक नई सुबह का वादा बन चुके थे। ईमान के नर्म लहजे में कहे गए ये चंद लफ्ज, मैं कोशिश करूं। गीत शाहवीर के अंदर एक टोटी हुई उम्मीद को पहली बार रोशनी देने लगे। उसके चेहरे पर वो थकावट, वो बेबसी और वो रात भर की परेशानी जैसे आहिस्ता आहिस्ता। ईमान ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया, मगर उसके कदम अभी भी नरमी और हचकचाहट से भरे हुए थे। शाहवीर ने उसे देखकर फौरन पीछे हटकर जगह बनाई, जैसे वो ये साबित करना चाहता हो कि उसकी हर हद, हर फासला अब ईमान की मर्जी से तय होगा। ईमान दरवाजे की चौखट से बाहर निकली। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो हर लम्हे अपने दिल को समझा रही हो कि अब खौफ पर काबू पाना है, क्योंकि बात रिश्ते की है, जिंदगी की है। दोनों लाउंज की तरफ चलने लगे। हर कदम के साथ खामोशी भी उनके साथ चल रही थी, मगर ये खामोशी वो नहीं थी जो दिलों को तोड़ दे। ये वो खामोशी थी जो टूटे हुए लफ्जों को तरतीब देने का इंतजार कर रही थी। महरक और आर्याना फौरन एक तरफ हट गए। उन्हें मालूम था कि आज की बातचीत में सिर्फ ईमान और शाहवीर के दिल शामिल होने चाहें, कोई तीसरा नहीं। शाहवीर ने सोफे के करीब पहुंचकर रखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं, या फिर कहीं और जहाँ तुम्हें बेहतर महसूस हो।
ईमान ने गहरी सांस ली और आहिस्तगी से बैठ गई। शाहवीर भी सामने बैठ गया, मगर उसने दोनों के दरमियान मुनासिब फासला रखा। ये भी ईमान के अतमाद की तरफ उसका पहला कदम था। ईमान ने अपनी उंगलियां मजबूती से आपस में जकड़ रखी थीं। उसकी आवाज़ हल्की लिरुस्ती हुई मगर सच्चाई से भरी थी। शाहवीर, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से सच बोलें, कोई भी बात छिपाए बगैर। अगर कोई गलती है तो हम उसे तस्लीम करके उसे ठीक करने की कोशिश करें, न कि छुपाएं या बर्दाश्त करके अंदर जलते रहें। रकी, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी उतर आई। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि हालात बिगड़ गए, बल्कि इस बात की है कि मुझे लगा जैसे मैं आपकी जिंदगी में अकेली रह गई हूँ। शाहवीर ने फौरी अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। नहीं ईमान, तुम कभी अकेली नहीं थी, कभी नहीं। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। महनूर का झॉट वो एक तूफान था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता झूठ से नहीं बना था और न ही झूठ उसे ख़त्म कर सकता है। तुम मेरा यकीन हो, मेरी ज़िंदगी हो, और मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें मुझ पर दोबारा इतिमाद दिलाने के लिए ज़रूरी होगा। ईमान ने उसकी आंखों में नज़र जमा कर पहली बार दिल की गहराई से महसूस किया कि शाहवीर वाकई सच बोल रहा है। उसके लहजे में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई झूठ छिपा नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक सवाल रह गया, अगर कभी फिर ऐसा हुआ तो? अगर कभी कोई झूठ हमारे दरमियान आकर सब कुछ बदल गया, मैं फिर कैसे संभलूंगी? शाहवीर ने आगे झुककर दोनों हाथ जोड़ लिए, जैसे अपनी सच्चाई पेश कर रहा हो। मैं वादा नहीं, कसम खाता हूँ ईमान, अब कोई भी ऐसा लम्हा नहीं आने दूंगा जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करे कि तुम मेरी जिंदगी में कम अहम हो। अगर कभी कोई मसला हो, कोई गलत फहमी, कोई बात जो तुम्हें तकलीफ दे, मैं खुद सबसे पहले तुम्हारे सामने बैठकर बताऊंगा। मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो या न दी हो, तुम मेरी पहली तरजीह होगी। ईमान के दिल में खामोश सी लर्ज़िश उठी। ये वो बात थी जिसका वो इंतज़ार कर रही थी, वो तसल्ली, वो एहसास तहव्वुस जो एक टूटे दिल को फिर से ज़िंदगी देता है। इसी लम्हे आरियाना ने दौर से बेख्तियार मुस्कुरा कर महरक की तरफ देखा। ये दोनों अगर आज बैठकर दिल की बात कर लेंगे तो शायद उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से आगे की कहानी मज़ीद तफसील और पैराग्राफ में पेश है। वादन की पहली बीवी के आने के बाद घर का माहौल जैसे मुकम्मल तौर पर बदल गया था। सनी की सालगिरह की खुशियां तो एक लम्हे में पस मंजर में चली गईं और हर शख्स के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर वायदान ने उसे दोबारा क्यों घर बुला लिया। दूसरी बीवी हुरैन खामोश थी, मगर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर टूट रही है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शौहर ने उसे हमेशा वफादारी और मोहब्बत के वादे किए, वो एक लम्हे में अपनी पहली बीवी की तरफ इस तरह खुंच जाएगा। पहली बीवी अमरीमा निहायत पुरस्कुन अंदाज में घर में घूम रही थी, जैसे वो कभी गई ही नहीं थी। उसकी वापसी में एक अजीब सा एतमाद था, जैसे उसे यकीन था कि वादन उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में उसी जगह पर ले आएगा जहां वो कभी थी। वो वादान से बात करते हुए बार बार उसके दिल पर असर डालती, पुराने दिन याद कराती और अपना ये दुख बताती कि आज तक वो वैदान को भुलाने की कोशिश करती रही मगर नहीं कर सकी। वादान दोनों औरतों के दरमियान फंस कर रह गया था। वो एक तरफ मरियम के साथ अपने माजी की मोहब्बत के एहसासात में खो जाता, तो दूसरी तरफ हुरैन के आंसू उसे अंदर से झंझोड़ देते। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसने जल्दबाजी में कोई बड़ी गलती कर दी है। सनी की मासूम नज़रों ने उसकी उलझन और भी बढ़ा दी, क्योंकि बच्चा दोनों औरतों के दरमियान बदलते हुए माहौल को महसूस कर रहा था। रात को जब सब अपने कमरों में गए, हुरैन तन्हा बैठी थी। उसने तकलीफ में डूबी आवाज में कहा, या अल्लाह, क्या मेरा नसीब यही था? मैंने तो वफादारी की राह चुनी थी, फिर ये आजमाइश क्यों आई? उसके आंसू दामन पर गिरते रहे, मगर वो जानती थी कि अगर उसने खामोशी अख्तियार की तो वो सब कुछ खो देगी। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि वो वादान से खुल कर बात करेगी। सुबह होते ही वो वादान के सामने खड़ी हुई और पूरी हिम्मत के साथ बोली, वादान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करूँगी। तुम्हें फैसला करना होगा। मैं 3 लोगों के दरमियान बंधी हुई डोर नहीं बन सकती। अगर मरियम आई है तो उसको रहना है या मुझे ये फैसला तुम्हें आज करना होगा।
ये बात सुनकर वादान जैसे पत्थर का हो गया। उसे एहसास हुआ कि मामला अब बच्चों का खेल नहीं रहा। मरियम दूसरी तरफ खड़ी सब सुन रही थी और उसकी आंखों में अजब तरह की फतह का तासर था, जैसे वो जानती हो कि फैसला किसके हक में जाएगा। घर की फजा एक बार फिर से कशीदगी से भर गई। वादान के दिल का बोझ बढ़ता गया और उसे समझ न आया कि वो माजी की मोहब्बत बचाए या हाल की जिम्मेदारी। वादान सारी रात सोचता रहा। उसके जहन में बार बार हुरैन की आवाज गूंज रही थी, मैं 3 लोगों के दरमियान बंधी हुई डोर नहीं बन सकती, फैसला करना होगा। इस जुमले ने उसके अंदर जैसे एक हलचल सी मचा दी थी। वो जानता था कि हुरैन ने कभी उससे ज्यादा नहीं मांगा, सिर्फ मोहब्बत, वफादारी और इज्जत, मगर मरियम की वापसी ने जैसे सब कुछ बखेर दिया था। मरियम के आंसू, उसकी कहानियां, उसकी बेबसी, सब मिलकर वादान के दिल में जगह बना रही थीं। उसे लग रहा था जैसे अगर उसने मरियम को दोबारा तकलीफ दी तो वो टूट जाएगी, मगर साथ ही वो हुरैन की खामोश तकलीफ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। सनी अपने बाप की तरफ देख रहा था, जैसे वह उसके चेहरे से कोई फैसला पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कल कहानी को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हर लम्हे की तफसील के साथ पैराग्राफ में पेश करते हैं। फोन की घंटी ने लाउंज में खामोशी तोड़ दी। वादान ने फौरन कॉल उठाई। कॉल के दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके चेहरे के तासरात बदल गए। वो चंद लम्हों के लिए बस साकित खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठा। हुरैन और मरियम दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। वादान की आंखों में एक अजीब सा खौफ और इत्तराब था, जैसे उसे अंदाजा हो कि जो बात आने वाली है वो सबके लिए जलजला बन जाएगी। वादान ने फोन रखने से पहले गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं फौरन आता हूँ। फोन रखने के बाद वो खड़ा हुआ और हुरैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी, मगर वो खामोशी अख्तियार कर गई। मरियम ने प्रस्कून अंदाज में पूछा, कौन था, क्या हुआ? वादान ने लम्हा रोका, फिर आहिस्ता से कहा, ये सुनी के स्कूल से कॉल थी। वो छोटा सा हादसा हुआ है, कुछ नहीं, बस मामूली जख्म आए हैं, लेकिन वालिदैन को फौरन आ जाना चाहिए। हुरैन के दिल की धड़कन तेज हो गई। सनी के लिए हर छोटा सा जख्म भी उसे अंदर से हिला देता था। उसने फौरन कहा, मैं आपके साथ चलती हूँ, हमें फौरन जाना चाहिए। मरियम ने भी बगैर कोई एतराज किए कहा, मैं भी चलूंगी। तीनों गाड़ी में बैठकर स्कूल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हर कोई खामोश था, मगर हर दिल में मुख्तलिफ ख्यालात के तूफान छिपे हुए थे। वादान सोच रहा था कि अगर सुनई का वाकया वाकई मामूली भी है, तो इसका मौक़े हुरैन और मरियम के दरमियान मौजूद जज्बाती फासला कम करने का एक जरिया ये बन सकता है। मरियम दिल ही दिल में खुश थी कि वो वादान और सनी के करीब है, मगर हुरैन के दिल में फिक्र थी कि ये सब कुछ किस हद तक सही नतीजा देगा। स्कूल पहुंचकर सुन्नी को देखा गया। बच्चे का चेहरा थोड़ा सा जख्मी था, मगर वो हंस रहा था। हुरैन ने फौरन उसके गाल को सहलाते हुए कहा, बेटा तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ ना? सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है उमा, बस गिरा था। इस लम्हे हुरैन के दिल की धड़कन थमी, मगर आंखों में नमी थी। वो जानती थी कि छोटे छोटे हादसे भी कभी कभार बड़ी हकीकतों को सामने ला देते हैं। वापसी के रास्ते में वादान ने आहिस्तगी से कहा, ईमान के लिए भी यही लम्हे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें हर गलत फहमी, हर झूठ और हर दर्द के बाद सही कदम उठाना होगा। हुरैन ने खामोशी से सर हिलाया, जबकि मरियम ने दिल में सोचा कि शायद आज के वाक़े ने सब कुछ बदलने की पहली करण पैदा कर दी है। वापसी पर घर का माहौल बदल चुका था। हर चेहरे पर थिकन और सोच की गहराई नजर आ रही थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा लम्हा आया था जिसमें लग रहा था कि रिश्तों की किशमकश के बीच भी उम्मीद की रोशनी बाकी है। वादान जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, मगर इस बार वो सबके लिए हकीकत और ईमानदारी के साथ कदम उठाने के लिए तैयार था। घर वापस आने के बाद वादान ने महसूस किया कि हालात अब पहले से ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। हर कमरे में खामोशी छाई हुई थी, मगर ये खामोशी किसी सुकून की नहीं बल्कि कशीदगी की थी। सनी अपने कमरे में खेल रहा था, मगर उसके हर हंसने और खेलने के पीछे हुरैन की तशवीश छिपी थी। वो मुसलसल बच्चे की तरफ देख रही थी, दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई छोटा सा वाकया उसके प्यारे को नुकसान न पहुंचाए। वादान ने गहरी सांस लेते
हुए होरिन और मरियम की तरफ देखा। वो जानता था कि आज का दिन महज हादसे का दिन नहीं, बल्कि इन सब के रिश्तों। जरूर मैं कहानी को मजीद आगे बढ़ाता हूँ और पूरी तफसील और जज्बात के साथ आगे बयान करता हूँ। घर के माहौल में आजकल खामोशी थी, मगर ये खामोशी सुकून की नहीं, बल्कि हर लम्हे के बोझ की अलामत थी। वादान सोफे पर बैठा सोच रहा था। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि अब आगे क्या कदम उठाए जाएं। मरियम और होरिन दोनों अलग अलग जगहों पर बैठी थीं और हर एक की नज़रें उसके रवैये पर मरकूज थीं। मरियम के चेहरे पर एक प्रस्कून अतमाद था, जैसे वो जानती हो कि उसका हक उसे वापस मिलेगा, मगर होरिन के चेहरे पर फिक्र और एहसास की मिली जली हालत थी। उसकी आंखों में थकन और दिल की छिपी हुई बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वादान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें अब सब कुछ साफ और खुलकर करना होगा। जो भी झूठ, जो भी गलत फहमी रही, उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। हमें सब के लिए, ख़ास तौर पर सुनी के लिए, सही रास्ता तलाश करना होगा। उसकी आवाज़ में पछतावा और आजिज़ी दोनों झलक रहे थे। उसके लबों की लर्जिश और आंखों की नमी इस बात की अलामत थी कि वो अपने किए पर वाकई फिक्रमंद है। होरिन ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, वादान, मैं चाहती हूँ कि हम सबके दरमियान सच्चाई हो। अगर हमें दोबारा एतमाद पैदा करना है तो अब कोई राज छिपाने का वक्त नहीं है। हमें अपने जज्बात खुलकर बयान करने होंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक नया आगाज़ करें, एक ऐसा आगाज़ जिसमें हर किसी की इज्जत और मोहब्बत महफूज हो। मरियम ने भी आहिस्ता से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं किसी की जगह लेने नहीं आई, न किसी के दिल को तोड़ने। बस मैं चाहती हूँ कि सब कुछ वाज़ेह हो जाए, ताकि सुनी के लिए एक खुशगवार और महफूज माहौल बनाया जा सके। ये सुनकर वादान की आंखों में पहली बार एक नर्म रोशनी भरी। उसे महसूस हुआ कि आज का दिन सिर्फ एक मामूली दिन नहीं, बल्कि ये एक नया बाब है जिसमें रिश्तों को बचाने और नए सिरे से आतमाद पैदा करने की शुरुआत है। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो हर कीमत पर झूठ और गलतफहमी को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने देगा। तभी इस नीकी मासूम हंसी की आवाज ने माहौल में एक खुशगवार तब्दीली पैदा कर दी। बच्चा खेलते खेलते हंस रहा था और उसकी हंसी ने होरिन के दिल को सुकून दे दिया। मरियम की आंखों में भी नरमाई आ गई और वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद आज का दिन वाकई सबके लिए नया आगाज लेकर आया है। वादान ने गहरी सांस ली और दिल में ये अहद किया कि आज से वो अपने रिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खुशियों के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। ईमान अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी के तूफान के साथ। वो जानती थी कि शाहवैर ने उसे हमेशा सच्चाई से प्यार किया है, मगर मेहनौर के झूठ ने उसके दिल में शकूक और खौफ पैदा कर दिया था। उसके हाथ कांप रहे थे और हर सांस के साथ उसे लग रहा था जैसे दिल के अंदर एक भारी पत्थर रख गया हो। वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं दोबारा उस पर एतमाद कर सकती हूँ? क्या शाहवैर वाकई सच्चा है या ये सब भी एक और धोखा है? ईमान की आंखों में आंसू जमा हो गए, मगर वो अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी खामोशी ने शाहवैर को अंदर से तोड़ दिया, मगर उसने सब्र किया। वो जानता था कि ईमान के दिल को दोबारा यकीन दिलाने के लिए वक्त और मोहब्बत दोनों की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। अब शाहवैर, ईमान और मेहनौर के जज्बाती तसादुम के साथ तफसील मैं बयान कर रहा हूँ। ईमान अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी के तूफान के साथ। वो जानती थी कि शाहवैर ने उसे हमेशा सच्चाई से प्यार किया है, मगर मेहनौर के झूठ ने उसके दिल में शकूक और खौफ पैदा कर दिया था। उसके हाथ कांप रहे थे और हर सांस के साथ उसे लग रहा था जैसे दिल के अंदर एक भारी पत्थर रख गया हो। वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं दोबारा उस पर एतमाद कर सकती हूँ? क्या शाहवैर वाकई सच्चा है या ये सब भी एक और धोखा है? उसी दौरान शाहवैर दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें थिकन और दर्द से सर्ख हो चुकी थीं। उसके लब कांप रहे थे, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, ऐमन, बस एक बार मुझे सुन लो। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और न ही कभी तुम्हें छोड़ने का सोचा। जो कुछ हुआ वो मेहनौर के झूठ की वजह से हुआ। ईमान ने नज़र झुकाई और खामोशी इख्तियार की। उसके दिल में शक और खौफ दोनों मौजूद थे। शाहवैर ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें अपना दिल दिखाने के लिए नहीं कह रहा,
मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मानी नहीं। तुम ही मेरी जिंदगी हो ईमान। ईमान की आंखों में आंसू जमा हो गए, मगर वो अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी खामोशी ने शाहवीर को अंदर से तोड़ दिया, मगर उसने सब्र किया। वो जानता था कि ईमान के दिल को दोबारा यकीन दिलाने के लिए वक्त और मोहब्बत दोनों की ज़रूरत है। उसी दौरान महनूर कमरे के अंदर आ गई। उसके चेहरे पर पछतावा और खौफ का मिला जलाता असर था। उसने आहिस्ता से कहा, शाहवीर, मैंने तुम्हारे और ईमान के दरमियान जो कुछ किया वो सब गलत था। मैंने झूठ बोला, तुम्हें और ईमान दोनों को तकलीफ दी। मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहती कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। शाहवीर ने गहरी सांस ली और कहा, महनूर, सबसे अहम बात यह है कि अब तुमने हकीकत कबूल की, लेकिन अब भी ईमान का दिल बहुत ज़ख्मी है। इसे वक्त चाहिए, सब्र चाहिए, और तुम्हें भी अपनी गलतियों का एहसास है। अगर हम सब मिलकर सच्चाई के रास्ते पर चलें तो शायद रिश्ते बच जाएं। ईमान ने पहली बार सिर उठाकर दोनों को देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था, मगर साथ ही उम्मीद भी झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अभी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकती, मगर मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब सच के साथ आगे बढ़ें और जो टूटा है उसे दोबारा जोड़ें। शाहवीर के दिल में पहली बार वाकई सुकून आया। वो जानता था कि ईमान ने अभी मुकम्मल इर्तिमाद नहीं दिया, मगर उसने पहला कदम उठा लिया है। महनूर भी खामोशी से सर हिला रही थी, जैसे दिल ही दिल मैं वो जान गई हो कि अब झूठ की कोई जगह नहीं है। यह लम्हा टूटे दिलों में उम्मीद की पहली किरण के तौर पर उभर आया, और सबने दिल ही दिल में सोचा कि शायद आज से एक नया आगाज मुमकिन है, जहां सच्चाई, इत्मीनान और मोहब्बत दोबारा अपनी जगह बना सकते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त घर में एक अजीब सा सुकून था, मगर यह सुकून खामोश किशमकश की एक आर्जी झलक के मुतरादिफ था। वायदान और शाहवीर दोनों अपने अपने कमरे में बैठकर हालात का जायजा ले रहे थे। वायदान दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब उसे सबके जज्बात का ख्याल रखना है, होरीन, मरियम और सबसे बढ़कर सुनीका। शाहवीर भी अपने दिल में अहद कर चुका था कि ईमान के इत्मीनान को दोबारा